Hello students, a very good morning to all of you and a very warm welcome to your maths classes. We have started the lecture and अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी थी उसमें हमने कॉमन वीडियो बनाया था for both the mediums like English medium also and Hindi medium also. But now onwards we're going to start with different videos for different mediums, like this video is for English medium students and the other one will be for the Hindi medium students. तो फर्स्ट चैप्टर हमने कंबाइन करके पढ़ा था, हमने इंट्रोडक्शन उसका कंबाइन करके पढ़ा था क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द मीडियम्स. अगर हमें वो सिंपल कैलकुलेशंस, सिंपल एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस जो है, अगर हम उन्हें प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे तो फिर आगे के चैप्टर्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इसीलिए हमने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर क्या किया था, कंबाइन करके बनाया था. अब से हम क्या करेंगे कि अलग वीडियोस होंगे, यानी इंग्लिश मीडियम के लिए अलग वीडियोस होंगे, हिंदी मीडियम के लिए अलग वीडियोस होंगे. इसके अलावा कल I'll be giving you a time, I'll texting you, and on that time we are going to have Zoom classes also. So what you have to do is install the Zoom app in your phone, and when I'll send you the link, join through that link. And that will be an interaction class where we'll understand like the things that I am teaching you, you're able to understand them or not, you're getting these things or not, or do you want to make some improvisions, or if there is a doubt in the things, in the questions that we had discussed. So we are going to do that in the Zoom classes. Now we were studying the first chapter, that is integers. तो इंटीजर्स में हमने पढ़ा था कि एडिशन के रूल्स क्या है और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या है. Basically in the complete chapter, in the whole chapter, we have to use these very concepts of addition, subtraction, multiplication and division, and then we have to solve the problems. So इस चैप्टर में हम एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज से किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा है. So we'll start with the second exercise and we're going to discuss second exercise today. Along with that, PDF will be given to you जिसमें कि आपको जो questions लिखे हुए हैं वही questions आप अपनी fair copy में solve करेंगे. So try rest of the questions in your practice copy and do the questions that I'm sending you, only those questions in the fair copy. Along with that, अगर आपने वो questions पहले try किए हैं अपनी practice copy में तो आपको क्या करना है कि जरूर the thing that you're solving, the steps should be correct. Otherwise what you have to do is you can solve the questions in your practice copy and the steps should be proper. Even if you're not following the steps that I have solved in the PDF, and if you're having doubt in any of the questions, you'll send me and I will discuss it in the next video. ठीक है, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. So now we're going to start with exercise 1A. First question is that you have to write all the integers between these two numbers. Like here we have -9 and -3. So we can write -8, -7, -6, -5, -4 and like that. Similarly, all the questions we can do. In the second one, we have compared the integers. So you have to find which one is greater, which one is smaller, and then you have to put the sign. In the third question, we have to find the values, and here you can see we have a different function, a different kind of sign that you have not seen, that you have not studied in your prior classes. ये जो फंक्शन यहाँ पे है इसको हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं. ऐसे करके इसका सिंबल बनता है. इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर चाहे हम नेगेटिव नंबर लिखें या पॉजिटिव निकले, जब भी वो बाहर निकलेगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके अंदर हमने लिखा -5, देन द वैल्यू कम्स आउट टू बी +5 और ओनली 5, लाइक पॉजिटिव वैल्यू. इसी तरीके से अगर इसके अंदर हमने 7 लिखा, देन ऑल्सो द वैल्यू विल बी 7. So mod is a function which gives you a positive value. Like here we have 20 minus, and then we have a mod of sign and then -11. So what it is going to be, ये -11 जो है जब हम mod हटाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. This will be 20 minus 11 and that comes out to be 9. Similarly, we have second part, mod of -23 minus mod of -16. तो हमें पता है कि mod क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू. तो mod of -23 की जगह हम 23 लिख सकते हैं. फिर ये माइनस बीच वाला यहाँ लिखा हुआ है. And similarly, mod of -16 will be 60. So we have in the next step 23 minus 16, which comes out to be 7.
सिमिलरली इन द थर्ड पार्ट वी हैव मॉड ऑफ -137, तो जब मॉड से वैल्यू बाहर निकलेगी क्या बन जाएगी 137, and then we have 137 plus 13 which comes out to be 150. Now in question number 4 we have integers and we have to arrange them in ascending order, while in question number 5 we have integers and we have to arrange them in descending order. So one such question we are going to see here. Now fourth question first part, हमें क्या करना है, इसको ascending order में arrange करना है. तो आप इसमें सबसे छोटा नंबर देखिए, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है -37. तो हमने सबसे पहले लिखा क्या -37, ये हो गया. उसके बाद -23, then -9, and then we have -5, then we have 0, then we have 11, and then we have 41. So like this what we have done, we have arranged these numbers in the ascending order. छोटे से बड़े के क्रम में हमने इसको अरेंज कर दिया. Similarly in question number 5 we have to arrange the terms in descending type of order. So what we are going to do, सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर को लिखेंगे. इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 46, तो वो लिख दिया 46 डन. Then here we have 19 done. Then here we have 8. After that we have 0. Then we have -3. Then -7 and then -23. So like this we have arranged the numbers. Now we're going to start with the second exercise. लेकिन इससे पहले कि हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करें हमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि पढ़नी है. रूल्स तो हमने पढ़ लिया है, एडिशन के रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स कैसे हैं, कि हम साइन के साथ किस तरीके से डील करते हैं व्हेनेवर वी स्टडी इंटीजर्स. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एंड इन दिस द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई दो नंबर हम लें अपने मन से a और b और वो इंटीजर्स हो तो उनको ऐड करने पे भी क्या आएगा इंटीजर. ऐड करने पे क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एडिशन की प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं. तो एग्जाम्पल, अगर आपने एक इंटीजर उठाया 2 और दूसरा इंटीजर उठाया 3, आपने इन दोनों को ऐड किया 2 + 3, तो ये क्या आ रहा है 5, और 5 भी क्या है एक इंटीजर है. तो यानी कि इंटीजर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है. अगला है एडिशन इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी दो नंबर हैं और हम उनको किसी भी तरीके से ऐड करें, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 और 3 को ऐड करें तो पहले आपने 2 फिर उसमें 3 ऐड किया, ये भी 5 आएगा. और अगर आप पहले 3 ले उसमें 2 ऐड करें तो वो भी क्या आएगा 5 आएगा. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम एडिशन की बात करें, यानी कि हम प्लस के साथ बात करें, तो a + b = b + a, यानी कि ऑर्डर जो एडिशन का है पहले और दूसरे टर्म का, वो हमें दोनों तरीके से सेम वैल्यू मिलती है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. थर्ड है एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी कि अगर हमने कोई इंटीजर्स के सेट में से 3 नंबर उठा लिया a b c, तब अगर हम a और b को पहले ऐड करें c को बाद में ऐड करें, या फिर हम पहले b और c को ऐड कर लें और फिर a को ऐड करें, जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. यानी कि दोनों तरीके से आंसर्स क्या होंगे सेम होंगे. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. तो हमने पढ़ा था लास्ट वन पे कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है. क्यों? क्योंकि हम किसी भी नंबर में 0 को जोड़ेंगे तो हमें वही नंबर वापस मिल जाएगा. सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट, existence of additive inverse. So someone asked about the additive inverse in the last video and we had discussed it also. Additive inverse किसको कहते हैं? हर एक नंबर a के लिए उसके ऑपोजिट साइन के साथ हमें एक नंबर मिलेगा जिसको कि हम ऐड करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0. यानी कि अगर आपको किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है, लेट अस सपोज यू हैव टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम सिर्फ इसका साइन चेंज कर देंगे. कैसे? -2. यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2, एंड अगर हम उल्टा भी चाहें तो कर सकते हैं, -2 का एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा 2. इस तरीके से कि अगर हमने इन दोनों को जोड़ा तो आंसर कितना आएगा 0. 6th में पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि अगर कोई दो नंबर्स इस तरीके से हैं कि a बड़ा है b से, मान लो 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक.
अब हम अगर दोनों में सेम नंबर ऐड करें, यानी कि 5 + 1 इज ग्रेटर दैन 2 + 1, इज इट करेक्ट और नॉट? सी 5 + 1 6 एंड दिस इज ग्रेटर दैन 3, तो ये चीज ट्रू हो गई, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी क्या है? वेरीफाइड है। इसी तरीके से सेकेंड प्रॉपर्टी में अगर a जो है वो b से छोटा है, यानी कि लेट अस सपोज 2 इज लेस दैन 3, और हमने दोनों साइड 1 ऐड किया, तो अगेन वील हैव 3 लेस दैन 4 विच इज करेक्ट. Now on the basis of these properties and the rules that we had studied in the last two lectures, we are going to start with exercise 1b. एक्सरसाइज 1b में क्या है? सबसे पहले आपको ऐड करना है इन इंटीजर्स को, तो हमने पढ़ा है कि हमें एडिशन किस तरीके से करना है. ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं आराम से. In question number 2, find the additive inverse of. We have to find the additive inverse. So we only have to change the sign. Like it's 23. So additive inverse of 23 will be -23, and so on. Again, we have a question to evaluate the values. See, question number 2, first part is कि आपको 23 का क्या निकालना है? Additive inverse. तो आप क्या लिखेंगे? The additive inverse of 23 is -23. Similarly, यहां क्या लिखेंगे? The additive inverse of -476 is 476. What we have to do is we have to change the sign only in this case. यानी कि जब भी आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा किसी नंबर का, तो जो भी उसका साइन है हम उस साइन को चेंज कर देंगे. अगर वो नंबर पॉजिटिव है देन वी आर गोइंग टू मेक इट नेगेटिव, और इफ द नंबर इज नेगेटिव देन यू आर गोइंग टू मेक इट पॉजिटिव. So the third question is to evaluate. That is, we have to find the value. Now see, we have solved these kind of questions. First we have the number 18 that we have written. माइनस माइनस मिल के हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई में ब्रैकेट का मतलब यहाँ क्या है? मल्टीप्लीकेशन से. और हमने पढ़ा है कि माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाइड करें तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है. एंड देन वी हैव 8. अब 18 और 8 आप ऐड कर सकते हैं. क्या आएगा आंसर? 8 और 8 16 का 6 और ये 2 26. दिस इज द आंसर. सिमिलरली वी हैव द थर्ड पार्ट, -16 माइनस ब्रैकेट में -5. तो हम -16 को ऐसे लिख सकते हैं, दीज टू माइनस व्हेन मल्टीप्लाइड टुगेदर विल रिजल्ट इन +5. अब हमने इस तरीके का रूल भी पढ़ा है एडिशन का, कि अगर दो नंबर्स हों जिसमें से कि पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो हमें काम क्या करना होता है? माइनस करने का. तो हम 16 में से 5 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 11. अगली चीज, वी हैव टू डिसाइड वेदर द साइन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इस केस में साइन किसका लगता है? बड़े नंबर का. वन नंबर इज 5 एंड द अदर नंबर इज 16. ऑब्वियसली 16 इज ग्रेटर देन 5. 16 का साइन क्या है? माइनस. तो दिस इज द आंसर, दैट इज -11. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 in which we have to verify these following questions. तो कुछ ही questions है जो अपनी कॉपी में करेंगे, बाकी के questions आपको अपनी practice कॉपी में try करना है. So we are going to discuss question number 1 here and then question number 4. See, we have to verify that both the sides are equal. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे LHS. LHS में हमारे पास क्या है? -14 + 9. That is -14 + 9. And now what is the value of -14 + 9? It comes out to be -5. यानी कि LHS को सॉल्व किया हमने, आंसर आ गया कितना? -5. Similarly, we'll solve RHS, and on RHS we have, that is right hand side, we have 9 plus -14. That is 9 minus 14. And again we have studied the rules. This comes out to be -5. Clearly you can see that LHS and RHS both are equal. So you will write कि since LHS equals to RHS, hence verified. Okay. Also, if I ask you कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, हमने अभी जो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी एडिशन की, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? यू कैन सी कि
only the order of the numbers has been reversed here. So the property that we have used is commutative property. Okay. Now we are going to start with the fourth part of question number 4. Again, we'll start with LHS. So LHS, we have these numbers, -9 plus -7 and then plus -40. चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो बिग ब्रैकेट के लिए अंदर में नंबर्स क्या है? -9 प्लस माइनस बिकम्स -7 plus of -40. Now we're going to solve these. -9 and 7, -16 plus -14. Okay, and on solving this we have -16 or 10, 26 or 4, 30, -30 this side. And then similarly we'll solve RHS, and we have -9 plus -7 plus -14, right? Like this we have the terms. तो ये क्या हो जाएगा? -7 plus -14. Again we have -9 plus ये -7 और -14 कितना हो जाएगा? -21. Again we have -9 -21. That comes out to be -30. तो अब आप देख सकते हैं कि LHS RHS हमने दोनों सॉल्व किया और दोनों ही केस में आंसर कितना आ रहा है? -30. तो आप फिर से वही चीज लिखेंगे, क्या कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, सिंस LHS equals to RHS, hence verified. Next we have question number 6, and the question says subtract the sum of this and this from the sum of this and this. सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके आंसर से इसके आंसर को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो अगर हम इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें, देन वी कैन राइट क्वेश्चन नंबर 6 एज -103 plus 27 and then minus of curly bracket minus of 137 plus -43. अब यहाँ देखिए, हमने ये जो है वो सेकंड पार्ट हो गया और इसमें से पहले पार्ट में जो दो नंबर्स लिखे थे उनको ऐड करना था. इसका जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे? इसके सम में से माइनस करेंगे. तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे. minus of 76 and then we'll put a bracket here, and again we have minus curly bracket minus 137 minus 43. In the next step this becomes minus 76 minus, and inside we have minus, same sign, so we are going to add the terms. 7 8 9 10 0 1 4 4 8 and 1 180. अगेन वी हैव -76. हमें क्या करना है? हर एक स्टेप में सिंप्लीफाई करना है. तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा क्योंकि वहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है. अगेन द क्वेश्चन इज -76 plus 180 and then the answer will be 104. So like this we have solved this question. Similarly we have a question number 7 in which when we mathematize it, it becomes minus of 53 minus of 29 and then plus minus of 16. क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको 53 में से पहले -29 को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है और फिर जो आंसर आता है उसमें आपको -16 ऐड करना है. तो हम क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर -16 उसमें ऐड करेंगे. Now you very well know how to solve these questions. -53 plus 29 and then plus minus minus 16. तो अभी आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे and then you will write the final answer. And I hope that these are very easy questions, so you all can solve these questions on your own. Now we have the question number 8. क्या कहता है क्वेश्चन कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 43, यानी कि दो इंटीजर्स हैं, उनको जोड़ने पे आता है 43, उसमें से एक इंटीजर -27 है, तो दूसरा क्या होगा?
as per the condition, as per the given things in the question, we can write कि sum of two integers equals to 43. Now the first integer given is minus 27. तो other integer will be, दूसरा integer कैसे निकालेंगे हम? 43 में से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 43 माइनस ब्रैकेट में minus 27. Now this comes out to be 43 plus 27, that is 70. So first integer is minus 27, the second one is 70. और जब हम इनको जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है? 43. Starting with exercise 1C, we are going to discuss some of the questions, and the questions are, पहला question कहता है कि find the product. तो numbers लिखे हैं, आपको इनको multiply करना है, and we know how to do this. We have studied the rules for multiplication in the case of integers. तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको अपनी कॉपी में करने हैं. इसके अलावा इफ देयर इज अ क्वेश्चन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, इफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग इट, देन यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन. ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट. आई विल गिव यू हिंट्स एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व देम ऑन योर ओन. यू आर गोइंग टू ट्राई दीज क्वेश्चन. सी, सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो वील राइट 25 into 6 लाइक दिस वी हैव रिटन. अब आप क्या करेंगे? साइन को चेक करेंगे. तो यहाँ 6 के आगे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव. फर्स्ट वन इज नेगेटिव. और हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई के केस में माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है. तो अब आप क्या करेंगे? 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिखेंगे और हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव साइन. इसी तरीके से यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे. वैल्यू क्या होगी? -8 into 15. अगले क्वेश्चन में आ जाइए. क्या कहता है? -8 into -13, यानी कि हमने नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 8 into 13 हो गया, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है. कब? जब हम दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. अगेन यू गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस लाइक दैट ओनली. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव बीन गिवन डिविजन. आपको डिविजन करना है. तो जो रूल्स जिस तरीके से हमने मल्टीप्लीकेशन के लिए पढ़े थे वही सेम रूल्स हम अप्लाई करेंगे किसके लिए? डिविजन के लिए. सी, we have the question is -66 divided by -6. इसको हम क्या लिख सकते हैं? -66 upon -6. ठीक है, अब हमें पता है माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाता है, यानी कि यहां से माइनस माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा? इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या? 66 upon 6. अब 6 का टेबल पढ़ते हैं. 6 1s are 6 and 6 11s are 66. So we have the value as 11 upon 1, which can again be written as 11 and which is the required answer. Similarly, इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो कहता है कि 0 को डिवाइड करना है -2 से. तो हम लिख सकते हैं 0 upon -2. और हमें पता है कि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें वो हमेशा हर केस में आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा. Therefore, for the fifth part we